अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोफस ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोफस ओव्यूल से पहले हम देख लेंगे कि ओव्यूल होता क्या है। ओव्यूल जो है एक फीमेल गैमेटोफाइट है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था कि ओवरी जो है ये एक पार्ट है कार्पेल का जिसके टॉप पे जो है होता है, मैं बता देता हूं। ये देखिए, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, तीन चीजें हैं। ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। वर्ड यूज किया एनाट्रोफस ओव्यूल। जब कभी भी हम एनाट्रोफस ओव्यूल बोलेंगे तो ओव्यूल जो है वो इन्वर्टेड होता है, उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, कैन यू सी दिस, इन, यू कैन सी हियर, इनवर्टेड। इनवर्टेड ओव्यूल किसको बोलते हैं? जिसमें बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं ओव्यूल के, वो एक एक्सिस पे नहीं आते हैं। एक एक्सिस पे आ जाएंगे तो वो ऑर्थोट्रोपस और ये एनाट्रोफस। तो एनाट्रोफस इन्वर्टेड ओव्यूल है। एक ओव्यूल ऐसा होता है जिसमें अगर हम एक्सिस खींचें तो सभी चीज एक्सिस पे आ जाएगी, उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। तो अभी मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले समझ लो। तो ये क्या है? कार्पेल है, दिस इज व्हाट कार्पेल। और कार्पेल का जो पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे एनाट्रोफस ओव्यूल का, किस तरह से बनाया जाएगा। बनाने का तरीका देख लो। ये मैं क्या बना रहा हूं? एनाट्रोफस ओव्यूल इन्वर्टेड। Anatropous ovule. This is called micropylent. माइक्रोपाइलेंट। और इसको दो एंड होता है, इसको बोलते हैं चलाजा एंड। जरा ध्यान दो बेटा। The ovule has got two end. One is the micropylent and another one is chalaza end. अब उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो अब मैं इसको लेबल करता हूं। कोई भी ओव्यूल को दो एंड होता है, जहां से ये ओपनिंग होगी वो माइक्रोपाइलेंट है और जो अपोजिट एंड है वो चलाजा एंड है। ये स्टॉक है, ये स्टॉक मिलेगा, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है जहां से ओव्यूल की बॉडी, ये बॉडी है, ये बॉडी, this is body of ovule, body of ovule, this is a body and this body is known as the body and this is stalk. ये funicle क्या है? Stalk. So it has two part, body and stalk. Body, ovule body, and this is what? Funicle, that is called stalk. Now these are two integuments, outer and inner integuments. I will tell you the function of all these things. What is the function of micropyle? What is the function of chalaza? What is the function of body of the ovule? What is the function of funicle? Now funicle has got a connection with the body and stalk is known as hilum. The connection of body and stalk is known as hilum. And it has got a supportive tissue also. This tissue is supportive, which is called as raphe.
So the stalk attached to the ovary. Okay, so this is stalk attached to the ovary wall, also known as placenta or placenta. So ovary wall is known as placenta, and this is the attachment known as hilum. The connective tissue or supportive tissue known as raphe. The body where there is opening is known as micropyline, and the opposite end is known as chalaza end. Apart from this, the outer and inner integuments are there. I will tell you what are the function of integuments. Now this is very important. This is embryo sac. This is called embryo sac, and they have got embryo sac के बाहर में इस तरह से cells हैं, parenchymatous cell है. These cells are called parenchymatous cells, but they are given a specific name known as nucellus. They are said to be nucellus. You know, student, nucellus is different and the nucleus is different. This is not a nucleus, this is a nucellus. So this is a nucellus cell, parenchymatous cell, living cell. I am telling you, parenchymatous always are diploid in nature. That means these cells are diploid. Then you can see, very very important, this is known as egg. Very important, this is egg. And what are the two cells which you can see? These are 1 cell, 2 cell, 3 cell, and these two cells are known as synagids. These are the synagids. So this is the egg and these two cells are synagid. Apart from this, you can see 3 cells here also in the opposite end, that is called antipodal. So these are the structure which along with the labeling you have to study this, because it usually come for 3 marks. Draw a neat label diagram of an anatrophous ovule or ortho. Ortho is not there in your textbook, but I'll tell you. So this is an inverted. Can you see this inverted? This portion is inverted. So this is why it is said to be anatrophous. अगर यही portion मैं इस तरह से बनाता, where everything, अगर यही सब चीज एक एक्सिस में आती, ये एक्सिस पे आती, तो उसको बोलते ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, आप देख सकते हो. ये यहां पे ये सब सेल्स होंगे. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये मैंने अभी बताया नहीं तुमको. ये जो सेल्स है, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई या फिर डेफिनेटिव सेल. इसके 2 नाम हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई और डेफिनेटिव सेल. तो ये मैंने जो एग्जांपल आपको बताया है वो किसका बताया है? एक एनाट्रोफस ओव्यूल. एनाट्रोफस को कैसे याद रखोगे? इन्वर्टेड है. और अगर इसी तरह ये एकदम स्ट्रेट होता, जिसका माइक्रोपाइल, चलाजा, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक. ये मैंने लिखा है एम्ब्रियो सैक. ये एम्ब्रियो सैक, दिस इज योर एम्ब्रियो सैक. ये सब अगर एक ही एक्सिस पे आते हैं तो इनको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस. व्हेन एवरीथिंग कम्स इन द सेम एक्सिस. एग्जांपल, दिस इज माइक्रोपाइलम व्हिच यू कैन सी माइक्रोपाइलम. दिस इज chalaza and this is embryo sac, antipodal, synagid, secondary nuclei and chalaza and the stalk. When they comes on the same axis, it is known as orthotropous, and when they do not come on same axis, it is known as anatrophous, which you can see anatrophous ovules. Very very important this is. So where we have seen, this is the structure of ovary, and actually it is a carpel which has got 3 parts. Stigma, receptacle part. The receptacle means the pollen grain will stick to this part. When a right type of pollen grain is deposited on the right type of stigma, then the germination tube will be given out. This germ tube will travel all the way from the style and comes in contact with the ovary for fertilization process. While drawing this structure, usually the children where they make mistake, that also we are going to study now.
अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 3 यहाँ पे भी सेल है, 1 2 3 सेल, इधर भी 3 सेल है, यहाँ 2 सेल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 2 3 ये 3 सेल हो गए, 1 2 3 ये 3 सेल हो गए, 3 अपोजिट पोल पे है, जैसे इनको क्या बोलेंगे, अपोजिट पोल। 3 सेल यहाँ भी है, 3 सेल यहाँ पे भी है, और 2 सेल ये 1 and 2, तो कितने हो गए, 8 सेल। तो अपन इसको बोल सकते हैं 7 सेल एंड, एक्चुअली इसको दोनों को एक गिना जाएगा, एक दो सेल जो है उसमें 2 न्यूक्लियस, एक सेल मतलब दोनों मिलके फ्यूज हो गए, फ्यूज होने की वजह से इसको एक कहलाया जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी 2 है। तो मैं इसको ऐसा बना देता हूं, कैन यू सी दिस, तो कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। रिमेंबर ऑल दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे मैं एक बार और तुमको बता देता हूं, ये एनाट्रोफस ओव्यूल है। एनाट्रोफस किसको बोलते हैं, इन्वर्टेड। अगर यही चीज सीधी होती तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। अब इसमें देखने की बात क्या है कि इसके अंदर कितने, अच्छा बच्चे कहां मिस्टेक करते हैं मैं बता रहा हूं। 3 सेल यहाँ है, 3 सेल यहाँ अपोजिट में है, बच्चे अक्सर 3 सेल यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, इसको बोलते हैं ये एंटीपोडल और ये सिनार्चिड। कोई बात नहीं, बोलते कि 3 3 तो है, नहीं मिस्टेक हो गई, रॉन्ग हो जाएगा डायग्राम। जहां से माइक्रोपाइल एंड होता है वहीं माइक्रोपाइल एंड के सामने ही एग बनेगा। अगर आप एग यहाँ बना दोगे और सिनार्चिड यहाँ लिखोगे, हालांकि ये भी 3 है और ये भी 3 है, प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि where the micropyle end is there, in front of the macropyle end the egg should be there, और एग अगर होगा तो ही वो राइट है, और अपोजिट चलाजा एंड की तरफ क्या होते हैं, एंटीपोडल होते हैं। ये चीजें याद रखना। Usually the children make mistake during the drawing the diagram. They draw the diagram properly, but at the time of labeling, what they do, they put this egg here and two synergid here, and they put antipodal. So this is not a proper diagram. क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइल एंड के सामने एग होना चाहिए और उसके आजू बाजू जो गार्ड सेल है उनको सिनार्चिड सेल बोलते हैं। जो अपोजिट पोल पे होगा, चलाजा के साइड पे होगा, उसको बोलते हैं एंटीपोडल। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? वापस एक बार देख लो, ये स्ट्रक्चर को गौर कर लो, क्योंकि अब मैं इसके हर एक फंक्शन बताने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का 2-3 पर्पस है। एक तो वो प्लाजेंटा और ओव्यूल का जो बॉडी होता है, देखो ये ओव्यूल की बॉडी है, बॉडी ऑफ एन ओव्यूल, प्लाजेंटा। और प्लाजेंटा क्या है, ये देखो ये प्लाजेंटा है, ये जो ओवरी का वॉल है उसी को प्लाजेंटा कहते हैं। तो ये ओवरी के वॉल से अटैच किया है, तो ये अटैच है। एक तो अटैचमेंट में मदद करता है, दूसरा नरिशमेंट में मदद करता है, क्योंकि प्लाजेंटा एक ऐसा टिश्यू है ओवरी का, ओवरी वॉल है, जिससे उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा, जिसकी वजह से ओव्यूल जो है वो मैच्योर भी हो जाएगा और हेल्दी भी रहेगा। नरिशमेंट उसको प्रोवाइड कौन करता है, प्लाजेंटा। तो प्लाजेंटा गिव द नरिशमेंट टू द ओव्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद चलाजा एंड और माइक्रोपाइल एंड, जो जहां पे स्टॉक बॉडी को कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम इज ए पार्ट ऑफ ए स्टॉक, कैन यू सी दिस हाइलम। और यहाँ पे हम चलाजा एंड बोलेंगे। उसके अपोजिट एंड पे माइक्रोपाइल एंड है। माइक्रोपाइल एंड के बाद तुम देखोगे कि 2 स्ट्रक्चर है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, एक 1 and 2। These are called इंट्यूग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, इंट्यूग्यूमेंट्स। ये इंट्यूग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन दे कंटिन्यूस पूरी तरह से उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि माइक्रोपाइल एंड जो एक ओपनिंग है जहां से ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होगा और जर्म पोर यहीं से एंटर करेगा, जर्म पोर यहीं से एंटर करेगा और इसको फर्टिलाइज करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऐसा होता है। कभी कभी जर्म पोर इंट्यूग्यूमेंट्स को तोड़ के भी आ जाता है, कभी कभी चलाजा एंड से, दैट इज वेरी रेयर केसेस।
मोस्टली द पोलन जर्म ट्यूब, जो हमने डायग्राम बनाया था, इट ऑलवेज एंटर्स फ्रॉम माइक्रोपाइलाइन एंड इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। इसीलिए वहां पे गैप है रखा है। ये गैप इसी वजह से है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसेस होगा, जो कि पोलन ट्यूब यहीं से एंटर करेगा, पियर्स करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हो गया हमारा माइक्रोपाइल एंड का समझ में आ गया। माइक्रोपाइल एंड जो होता है वो किस पर्पस के लिए होता है? फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद ये इंटीग्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्टिव है, पूरी तरह से उन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है, एक ही जगह छोड़ रखा है फर्टिलाइजेशन के लिए। अच्छा, अब क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये इंटीग्यूमेंट दो हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट्स और इनर। तो आउटर इंटीग्यूमेंट जो होगा वो सीड कोट बनाएगा, सीड, क्योंकि ये सीड बनने वाला है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल सीड में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर का जो कवरिंग होती है वो हार्ड एंड टफ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा। ये जो इंटीग्यूमेंट्स का जो आउटर इंटीग्यूमेंट्स होता है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, ये बनाएगा टेस्टा, हार्ड एंड टफ कवरिंग। हार्ड एंड टफ कवरिंग जो बनाएगा वो क्या है? हार्ड एंड टफ कवरिंग कौन बनाएगा? टेस्टा। देखा ना, आम का जो सीड होता है, अंदर सीड होती है, जो ऊपर की कवरिंग होती है वो हार्ड एंड टफ होती है, टेस्टा है वो। फिर उसको तुम बाहर निकालोगे तो पतला मेम्ब्रेन निकलेगा, जो इनर इंटीग्यूमेंट है, जिसको बोलते हैं टैगमन। आउटर इंटीग्यूमेंट्स विल फॉर्म hard and tough covering known as testa, and inner integuments will form a soft and membranous covering, membranous covering करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टैगमन। क्या बोलेंगे? टैगमन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा? सीड बनेगा। सीड के ऊपर जो हार्ड एंड टफ कवरिंग होती है उसको टेस्टा बोला जाता है। जब सीड को हम निकाल देंगे, एक और पतला कवर होता है उसके ऊपर, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस कवर। वो टफ नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है और मेम्ब्रेनस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैगमन। ये हमारा टैगमन। ठीक है, अब आगे की तरफ न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है ये पैरेन्काइमेटस सेल है, लिविंग सेल है, डिप्लॉइडी होता है। और आप देखोगे कि इसका जब सीड फॉर्मेशन होता है तो उसमें इसका काम होता है हाइपोडर्मल टिश्यूज बनाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उसको, यू कैन से, ग्रो होने में, एग को ग्रो होने में मदद करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक। कैन यू सी दिस एम्ब्रियो सैक? ये एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सेट जो होता है उसके अंदर आप देखोगे कि माइक्रोपाइल एंड के एकदम सामने एग होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एग है, जो बड़ा सा मैंने बनाया, ये एग है, और ये एग जो होता है, ये एग, यही फीमेल गैमेटोफाइट है। ये एग फीमेल गैमेटोफाइट है, जो मेल गैमेटोफाइट से फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बनाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यही सीड बनाता है। ये आप एग देख रहे हो, ये एग लिखा है। एग कहाँ होगा? माइक्रोपाइल के सामने होगा। माइक्रोपाइल के सामने क्यों होगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए आसानी होगी, क्योंकि जर्म ट्यूब यहीं से एंटर करेगा। जर्म ट्यूब बना देता हूं, देखो ये जर्म ट्यूब है, ये अंदर जा रहा है, इसको बोलते हैं जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब अंदर जाएगा और ये इसके साथ फर्टिलाइज कर देगा। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जब करेगा तो ये क्या हो जाएगा? जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बाद में एम्ब्रियो बनाएगा, जिसको हम सीड बोलते हैं। अंडरस्टूड? फिर ये जो सिनार्जिड है, ये देखो सिनार्जिड्स मैंने लिखा, इसके बाजू में दो गार्ड सेल है। देखो ना, एग है, ये एग है, और एग के बाजू में, उसे पेंसिल में बना देता हूं, ये जो दो सेल हैं ये है सिनार्जिड्स। क्या है? इसको एक वर्ड तुम्हारे बुक में दिया है, फिलीफॉर्म सिनार्जिड। फिलीफॉर्म सिनार्जिड। व्हाट इज फिलीफॉर्म? फिलीफॉर्म सिनार्जिड जो स्वेलन स्ट्रक्चर होते हैं और ये एग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा,
वो डीजनरेट हो जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये डीजनरेट भी हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। इन्हीं के वजह से वो गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को बराबर कहां आने के लिए, एग की तरफ, और फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। अंडरस्टूड? दे यूजुअली guide the pollen tube so the egg and the male gamete can fertilize with each other, एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे और सिनार्जी जो है ये फिलीफॉर्म है और डीजनरेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर ये 3 एंटीपोडल क्या है? ये 3 एंटीपोडल ए भी डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये एंटीपोडल भी क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंडरी न्यूक्लियर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस डीजनरेट नहीं हो जाएंगे, बल्कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो बनाएंगे एंडोस्पर्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म जो है ये ट्रिप्लॉइडी है, 3n नंबर का है ट्रिप्लॉइडी। अभी हमने हैप्लॉइडी पढ़ा, जैसे कि एग क्या था? हैप्लॉइड था। एग क्या था? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, n नंबर था। ठीक है, और डिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी कौन है? डिप्लॉइडी ये पैरेन्काइमस सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। अभी हमने पढ़ा था न्यूसेलस, मैंने बताया था न्यूसेलस, यहीं लिखा है, ये देखो न्यूसेलस। लेकिन 3n स्ट्रक्चर कौन था ना? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। एंडोस्पर्म क्या करेगा? हमने देखा एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन देता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को मदद करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एनाट्रोफस ओव्यूल। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगेन आई विल रिपीट, कोई भी एनाट्रोफस ओव्यूल को क्या बोला जाता है? इन्वर्टेड ओव्यूल बोला जाता है। ये एनाट्रोफस ओव्यूल ओवरी के वॉल से अटैच होता है। ओवरी के वॉल को प्लासेंटा बोलते हैं और ओव्यूल को जो कि अटैच है, इन्वर्टेड है, उसको एनाट्रोफस ओव्यूल बोलेंगे। अब ओव्यूल जिससे अटैच होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, और ये जो बल्जी पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी। तो जो एनाट्रोफस ओव्यूल है ये जो है वो स्टॉक है, और ये पार्ट जो है क्या है? बॉडी है, ओव्यूल की बॉडी। स्टॉक को 3 चीज है, क्योंकि स्टॉक को दूसरा नाम है फ्यूनिकल। ये मैंने लिखा है फ्यूनिकल, कैन यू सी दिस? वेयर इट इज? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक स्टॉक है, उसको सपोर्टिव टिश्यू है जिसको बोलते हैं रैफिन, और जब बॉडी और स्टॉक का जहां अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं हाइलम। रिमेंबर ऑल दिस। जो स्टॉक का पार्ट है और एक ओपनिंग है, इसके 2 एंड है। दिस वन एंड अपोजिट पोल है ना, एक अपोजिट, ये पोल, ये इसका अपोजिट। जहां से स्टॉक बॉडी को अटैच करता है उसको बोलते हैं चलाजा एंड, और जहां से उसका अपोजिट एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। ये माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, मैंने लिखा है, आप देख लेना। तो माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड जो है एक तरह से ये ओपनिंग है जो कि मदद करता है फर्टिलाइजेशन के अंदर, क्योंकि जब राइट टाइप का पोलन ग्रेन, राइट टाइप के स्टिग्मा पे डिपॉजिट हुआ, ये क्या था? पोलन ग्रेन। ये व्हेन राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन इज डिपॉजिट ऑन द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा, तो पोलन ट्यूब निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म ट्यूब, पोलन ट्यूब। दे आर बोथ वन एंड द सेम। तो ये यहां से होते हुए इसको फर्टिलाइज करता है। तो ये जो फर्टिलाइज करता है दिखाने को तो मैंने दिखा दिया, लेकिन वो एंट्री यहां से करता है, वो माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करता है। 99% यहां से करता है। एक्सेप्शन केस है कि कभी कभी जब इसको यहाँ पे बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ इट फेल्स टू एंटर्स फ्रॉम दिस रीजन, इट मे एंटर्स फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट्स, इट मे एंटर्स फ्रॉम द चलाजा। द नेम्स आर गिवन, स्पेसिफिक नेम्स आर गिवन, ठीक है, मिजोगैमी, चलाजोगैमी and one more name is there. Okay, apart from this student, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 इंटीग्यूमेंट्स हैं। इंटीग्यूमेंट्स वो होते हैं जो कवरिंग करते हैं, सभी जगह उसने कवर किया है एक्सेप्ट दिस प्लेस। These integuments in the future after fertilization they will form the seed coat. The outer integuments forms the hard and tough covering known as testa. The inner integuments will not form that hard covering, but it is a membranous covering which we call as tegmen. Very important. We'll go inside now. Now this is the structure. ये जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला? न्यूसेलस बोला।
न्यूसेलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉइडिसी मेंटेन करता है, जो डिप्लॉइड है और ये पैरेन्काइमेटस सेल है और इस स्ट्रक्चर से कभी कभी एम्ब्रियो बनता है एक्सेप्शनल केस में और मदद करता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। उसके बाद एम्ब्रियो सैक है, ये पूरा दिख रहा है आपको एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में जो चलाजा साइड पे है 3 एंटीपोडल होंगे, माइक्रोपाइल के पास भी 3 सेल होंगे, जो बीच में होगा वो एग होगा और आजू बाजू जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उसको मदद करेंगे फर्टिलाइजेशन में, उसको बोलते हैं सिनार्चिड। होता क्या है जब पोलन ग्रेन अंदर की तरफ जाता है पोलन ट्यूब, तो ये एग से फर्टिलाइज होता है, तो एग से फर्टिलाइज होने से पहले एक सिनार्चिड डीजनरेट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद दूसरा सिनार्चिड भी डीजनरेट हो जाता है। ये सिनार्चिड को फिलीफॉर्म वर्ड यूज किया है, स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, मोस्टली पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गाइड करते हैं किसको गाइड करते हैं, पोलन ट्यूब को, कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एंटीपोडल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट होते हैं, बस इनका यही काम है। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लिया है, पोलार न्यूक्लिया है, डेफिनेट न्यूक्लिया है, 3 नाम है, पोलार न्यूक्लिया, डेफिनेट न्यूक्लिया या उसको पोलार या सेकेंडरी न्यूक्लिया। इनसे एक और मेल गैमेट जाके फ्यूज होता है, हालांकि ये क्या है, दो न्यूक्लियस है लेकिन एक ही सेल है, इसीलिए तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भी इसको कहा गया है। रिमेंबर ऑल दिस थिंग, 7 सेल क्यों हुआ, 3 + 3 6 हो गया और बीच वाला एक ही है, लेकिन एक सब में हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, मिडिल वाले में जिसको हम लोग ने सेकेंडरी न्यूक्लिया बोला था या फिर हमने उसको डेफिनेट सेल बोला था या हमने उसको क्या बोला था, पोलार न्यूक्लिया, मैंने लिखा नहीं लेकिन थर्ड नाम भी है इसको, पोलार न्यूक्लिया। तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, इसी वजह से एक सेल 2 न्यूक्लियस, तो 7 सेल टोटल, 3 + 3 6 और 1 7, तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको। अंडरस्टूड और नॉट? इस 7 से ये क्या होता क्या है कि ये जब 2 न्यूक्लियस वाला है तो उसको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलना चाहिए। ट्रिप्लॉइड कैसे हो गया, ट्रिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन के बाद हो जाता है, क्योंकि एक मेल गैमेट आके इसको भी फर्टिलाइज करता है। अब तुम सोचोगे एक मेल गैमेट तो उसने एग को फर्टिलाइज किया, एक दूसरा किधर से आया, तो यही याद रखो जब हमने पोलन का स्ट्रक्चर बनाया था, यहां बना देता हूं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था, तो हमने ट्यूब बनाया था जिसको हम लोग ने लिखा था जर्म ट्यूब। पोलन ट्यूब भी बोलते हैं, जर्म ट्यूब भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम मत करो, मिस्टेक मत करो, इसमें एक ही चीज है वो। और आपने देखा था कि आगे आगे कौन था, ट्यूब न्यूक्लिया है, इसको हम लोग ने ट्यूब सेल भी बोला था, जो मालूम है क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई था। क्या था, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई था। उसको पीछे कौन फॉलो कर रहा था, फर्स्ट मेल गैमेट्स फॉलो कर रहा था, और इसके पीछे कौन है, सेकेंड मेल गैमेट उसको फॉलो कर रहा था। तो एक मेल गैमेट तो एग को फर्टिलाइज करने वाला है, What about the second male gamete? सेकेंड मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज करने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी वजह से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ये चीज। आज के लिए इतना ही तुमको बुक में दिया है। एग को एक और नाम दिया, oosphere भी देते हैं। ये जो एग है, कैन यू सी दिस एग? एग इज ऑल्सो नोन एज oosphere। एक नया नाम याद रख लो, एग हैप्लॉइड होता है। एग क्या होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है बेटा, एग्जांपल ले लो, ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। अगर उसको 23 में बांट दिया जाए तो वो हैप्लॉइड है, अगर 46 लेंगे तो डिप्लॉइड है। सिंपल समझ में आया? तो ये डिप्लॉइडिसी मेंटेन करने के लिए ही गैमेट्स कभी भी हैप्लॉइड होते थे, इसीलिए गैमेट्स जब बनते हैं तो मियोसिस होता है, इसी पर्पस के लिए होता है कि डिप्लॉइडिसी मेंटेन हो। जैसे ऑर्गेनिज्म है, अभी ह्यूमन बीइंग है, अगर 46 क्रोमोसोम्स फादर डोनेट करेगा और मदर जो है वो भी 46 देंगे और दोनों का फ्यूज हो जाएगा, तो 46 कितने हो गए, 92 हो गए। और हम तो डिप्लॉइडिसी टेट्राप्लॉइडी में चले जाएंगे तो कुछ भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, जिजाइंटिज्म प्रोड्यूस होगा।
कुछ ऐसा एबनॉर्मल ही होगा ना, नॉर्मल जो होगा तो डिप्लॉइड ही है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए प्लांट में भी होता है। प्लांट में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होता है, जिसकी वजह तुमने देखा पॉलीप्लॉइडी कंडीशन की वजह से इंड्यूस किया जाता है, पंपकिन का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, वाटरमेलन का साइज बढ़ाता है, उसमें पॉलीप्लॉइडी पर्पसली किया जाता है क्योंकि ज्यादातर पॉलीप्लॉइडी प्लांट के अंदर बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर हो जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स 99.99% इट इज हार्मफुल, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल है हमारा डीएनए, उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो एबनॉर्मल केसेस आ जाएगा। ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। आज का जो लेक्चर था उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोफस ओव्यूल पढ़ा, यही चीज पढ़ना था। न्यूक्लियस को हमने ये जो एग था उसको हम लोग ने एक और नाम दिया, वो स्पीयर भी नाम दिया। अब इसके बाद ये फंक्शन हमने पढ़ा फ्यूनिकल और इसका सबका। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।